Assalamu alaikum all of you. I hope you all are doing great. Today I'll solve these similar words which were asked, which I had taken from the CSS 2005 year paper, the Preci and Comprehension paper, and before that I had also solved the Preci and Comprehension of 2005 year paper which were asked in CSS. So, and I had taken from CSS paper. So today I'll solve the uh, similar words, or the words in which we have to find out the synonym of that word. The first word is anathema. Anathema means hatred, नफरत करना, डिसलाइक करना, अबोर करना, या आप कहें कोई चीज़ लूथेबल हो, एबोमिनेबल हो, या ऑडियस हो, या हेट, या एनाथमा, कर्स, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, इसके सैनोनिम्स में आती हैं। तो इसका जो सैनोनिम होगा वो होगा कर्स, राइट। अगर मैं इसकी मीनिंग पढ़ूँ तो इसमें लिखा हुआ है कि मीनिंग अ पर्सन और अ थिंग दैट इज़ स्ट्रांगली डिसलाइक और hated, often due to being considered evil or unclean. The second, okay, I'll explain you the other options as well. Cure तो आपको पता है, cure means इलाज होता है. Cure means इलाज, a remedy for a disease or a condition, right? Anemia, एनीमिया अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, खून की कमी को कहते हैं एनीमिया, अ कंडीशन इन विच द ब्लड डज नॉट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. तो इसमें जो होता है एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है. एस्थमा जो है वो हम दमे को कहते हैं, राइट. उर्दू में तो हम इसे दमा कहते हैं, जिसमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में मसला आता है. अ रेस्पिरेटरी कंडीशन मार्क्ड बाय अटैक्स ऑफ ब्रीथलेसनेस, इंग्लिश में इसकी मीनिंग है. अगर मैं आगे पढ़ूँ, सेकंड वर्ड को पढ़ूँ तो उसमें है torpor. Torpor. It means a state of physical or mental inactivity, often characterized by drowsiness और lethargy. अब इसके डिफरेंट वर्ड्स होते हैं synonyms, जैसे लेजी होता है, स्टेगनेंट होता है, या डोरमेंट भी कहते हैं हम लोग. डोरमेंट अगर आपने वर्ड सुना हो कि आपका अकाउंट जो है वो डोरमेंट हो गया है, मीन्स वो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो गया है, राइट. लेज़ी जिसे आप बोलते हो, तो आप उसकी जगह पे लेथर्जी यूज़ करें. लेथार्जिक पर्सन, ये बहुत लेज़ी है, बहुत स्लगिश है, बहुत टॉर्पोर है, बहुत जो है वो स्टैगनेंट हो गया है ये बंदा. और काउच पोटैटो हम यूज़ करते हैं, राइट, इनएक्टिव है. तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, लिथर्जी. लिथर्जी जी का भी मतलब ये होता है सुस्त. फीवर का तो आपको पता है, फीवर जिसे आप बुखार कहते हैं. एन एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर ऑफन ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है. And the other options are taciturn. Taciturn means uncommunicative. Another very beautiful word is reserved. Reserved means uncommunicative. A person speaks when it is needed, means reserved किस्म का इंसान, uncommunicative किस्म का इंसान. So the correct option of torpor is lethargy, but taciturn means uncommunicative, reserved, reticent, and uh, uncommunicative person, a person who speaks very little, khamosh. Torrid means very hot, full of passion और large amount of something. शदीद गर्म भी आप इसे कह सकते हैं, torrid. And other word is touchstone. Touchstone is a kind of benchmark, so it refers to the standard or a taste against which something can be judged or evaluated, जैसे हम क्राइटेरिया कहते हैं, बेंचमार्क कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वर स्टडी द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सो why the training is conducted, because to reduce the gap between the actual performance and the desired performance. So there is certain benchmark, there is certain criteria, and there is certain touchstone which to
which they have to fulfill, and they want to reduce the gap. That is why they conduct the training. So similarly, I had just given you the example related to it, related to the criteria and touchstone word. The word gold means a yellow metal. Everyone knows about the gold. The second word is character. Character means kirdar, and characteristics means khususiyat. Characteristics includes your traits, but the character is the individual's mental and physical personality. A person's character includes many things. uh, there are like the qualities. There are certain qualities which differentiate one person from another. So the character is built based on those qualities. So there is a little, not a little but a huge difference between both of these words. करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो खसूसियात होती हैं, करेक्टर इंसान का किरदार होता है. If we'll talk about the next word, then sequester. Sequester means isolated, dejected, जो अलग थलग हो, isolated हो. और यस, जो जिस इसमें जैसे एक वर्ड, इसकी मीनिंग अगर मैं पढ़ूँ तो टू आइसोलेट और सेपरेट समवन और समथिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑफन फॉर द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन. अपने सुकून के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए आइसोलेट कर देना, आइसोलेट हो जाना. तो अदर वर्ड्स आर, इफ आई, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. इफ आई read other options, so eliminate means ख़त्म करना, to completely remove or get rid from something. Finalize means to complete a decision or agreement, means मुकम्मल करना. And sedate is a very very important word. Sedate means relax करना, calm करना, to calm or make someone sleepy, often through mediation. देखिए इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि सुकून देना या सुकून करना. सी डेट आप ऐसे याद कर लें, कभी आपको अपनी फ्रेंड के साथ, बेस्ट फ्रेंड हो जो आपकी, उससे आप सी पे जाके मिलेंगे ना, तो आपकी सी डेट होगी. तो सी डेट पे आप सुकून करेंगे, बातें शातें करेंगे. तो ये सी डेट आप ऐसे इस निमोनिक टेक्निक से याद कर लें, मीन्स सुकून. ओके, हम तो इस सिक्वेस्टर का राइट ऑप्शन डी होगा, आइसोलेट. The other word is denouncement, right? अब देखें नीचे भी एक वर्ड ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, डिनंसिएशन. ये मिलते जुलते हैं, डिनाउंसमेंट एंड डिनंसिएशन, राइट? डिनाउंसमेंट का मतलब होता है द फाइनल रेजोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन और अ प्लॉट, राइट? जैसे आप एक्सप्लेनेशन कहें या इसमें मिस्ट्री भी लिखा हुआ है या कोई प्रॉब्लम हो, तो इसमें रेजोल्यूशन या एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ की, राइट, या फाइनल डिसीजन या फाइनल प्लॉट कहें, तो उस डिनाउंसमेंट का मतलब ही होता है. पर अगर हम लोग इसकी बात करें डिनंसिएशन की, तो इसका मतलब होता है पब्लिक कंडेमिनेशन ऑफ समवन और समथिंग, जिसे मजम्मत करना आप कहते हैं ना, जिसे हम लोग ख़ास करके बच्चों के लिए हम लोग सेंश्योर करना, सिटायर करना और मजम्मत करना, क्रिटिसाइज़ करना, राइट? तो ये वर्ड्स भी हम लोग इससे सिमिलर यूज़ कर रहे होते हैं. पर जो वर्ड है डिनाउंसमेंट, उसका जो राइट ऑप्शन है जो इससे सिमिलर है वो है एक्सप्लेनेशन. अगर हम लोग दूसरे वर्ड्स को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो दूसरा वर्ड है डोरमेंसी. डोरमेंट आपने सुना है, अकाउंट मेरा डोरमेंट हो गया, बैंक अकाउंट मीन्स वो थोड़े टाइम के लिए ना इनएक्टिव हो जाता है. डोरमेंट मीन्स अभी मैंने आपको वर्ड बताया ना, लिथर्जी, और हमने दूसरे वर्ड पढ़े जैसे लेज़ी होता है, स्लगिशनेस होता है, तो डोरमेंट भी वही होता है. इसमें लिखा हुआ है डोरमेंसी, राइट? डोरमेंसी मीन्स सुस्ती की हालत जिसे कहें आप, या स्टेट ऑफ बीइंग टेम्परली इनएक्टिव और इनऑपरेटिव. जैसे मैंने बैंक के अकाउंट का आपको मैंने एग्जाम्पल दिया. टर्मिनेशन कहें हम लोग, तो ये इसको खात्मा कहते हैं. जैसे आप जॉब करते हैं तो आप रिटायर हो जाते हैं, तो आपकी जॉब की टर्मिनेशन होती है.
या इन कंक्लूजन लिखते हैं, या कभी कभार आप इन टर्मिनेशन भी लिख देते हैं, लास्ट लिखते हैं, तो ये सिनोनिम्स हैं। द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग टू एन एंड आपके हैं इसकी इंग्लिश मीनिंग, तो ये बेहतर रहेगा। एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको बता दिया, वजाहत, स्टेटमेंट और अकाउंट दैट मेक्स समथिंग क्लियर, राइट। तो डिनाउंसमेंट का सिमिलर वर्ड होगा एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप देखें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा, राइट, बिकॉज दीज थिंग्स विल मेक मी मोटिवेटेड। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।